Hello to all my biology enthusiasts and other viewers. This is Shruti Jain standing here with Jagdeep sir, who is the biology educator at Unacademy Center, Kota. Hello sir. Hello. Sir, so today I have prepared rapid fire round that will be, challenging, or I can say that will be testing your knowledge, and at the same time हमारे viewers के लिए भी एक check point हो जाएगा that उनको ये questions के answers पता है कि नहीं. So are you ready to answer all my questions? हाँ, मैं रेडी तो हूँ, लेकिन क्वेश्चंस मेरे सब्जेक्ट के हों तो ज़्यादा बढ़िया है कि आपने जो तैयारी कर रखी है क्वेश्चंस की वो मेरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बाकी सभी क्वेश्चंस के आंसर मुझे पता हो या नहीं पता हो उस पर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा मैं तैयार हूँ कि हाँ भाई सब्जेक्ट के आंसर मैं दे सकता हूँ. Exactly sir, I have prepared all the subjective questions जो आपके सब्जेक्ट के ही हैं, right? So लेकिन मैं उससे पहले स्टार्ट करूँ, I have 3 rules. So are you ready to listen to all the 3 rules? Okay, so my rule number 1 says no use of mobile phones or any electronic gadgets to Google out your answer. Okay. So sir, आपके पास जितने भी electronic device है, your mobile phone you can submit here. Okay. चलिए, एक मोबाइल है मेरा बस. Okay. So guys, मैंने सर का फोन ले लिया है so that he is not doing any cheating. Okay. Now next rule number 2 says you will not be allowed to stop in between and have to reply very promptly. सर आपको टाइम नहीं दिया जाएगा सोचने का, और अगर आपने टाइम दिया तो फिर आपका टिक 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 स्टार्ट हो जाएगा. Okay. Rule number 3 says for every correct answer you will get 10 points and for every incorrect answer 5 marks will be deducted. ये थर्ड रूल सुनने के लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड था कि भाई प्राइस क्या रखा है इन्होंने सही आंसर देने का. Yes, so this is there, you will get 10 points and sir ऐसे नीट के एग्जाम में भी होता होगा ना कि उनको नेगेटिव मार्किंग होती है. हाँ बिल्कुल, सही करते हैं तो +4 मिलते हैं और अगर रॉन्ग हो जाता है तो -1 हो जाता है. तो सर अभी +4 -1 नहीं, हमने आपके लिए +10 और -5 रखा है. सही है, सीधा 50% का रखा है डिडक्शन. So okay, these are my 3 rules. Are you ready now? Yeah. Okay guys, so starting with the very first question. First question says name the process by which plants lose water vapor. Water vapor. Transpiration. Nice, you are getting 10 points. Second, which organelle is responsible for protein synthesis? Organelle. Yes. Ribosome. Ribosomes, nice, good going. What is the genetic material in a prokaryotic cell? Genetic material DNA, but circular होता है, वो बच्चों को पता ही है. Circular DNA. Wow, correct answer again, 10 points. What type of bond holds the complementary strands of DNA together? Complementary strands, hydrogen bond. Nice, again 10 points. Which enzyme breaks down starch into maltose? Starch to maltose. Yes. Amylase. Alpha amylase है amylase. Okay. Next question says find the correct sequence of taxonomic categories. Sequence. अब इसमें ascending है descending है मुझे पता नहीं, मैं सीधा बोल देता हूँ. क्वेश्चन भी लैंग्वेज में फिक्स नहीं है. Kingdom, division, class, order, family, genus and species. Guys, you are seeing कितने जल्दी सारे आंसर्स दिए जा रहे हैं. Okay, and he is getting every 10 points. अभी मेरे को मौका नहीं मिला है कि इनके मार्क्स डिडक्ट किए जाए, बट ऐसे एक क्वेश्चन तो होगा सर जिसमें आपको अटकना होगा एंड मैं -5 कर दूंगी सर के. Okay, next question, question number 7. In which type of taxonomical aid live specimens are used for reference in taxonomic studies? इसमें म्यूजियम भी आते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स में, लेकिन आपकी लैंग्वेज में लिविंग का लिखा हुआ है तो ये होना चाहिए जूलॉजिकल पार्क्स और बोटेनिकल गार्डन्स. Nice. So students, you are seeing that sir आपको एक रेफरेंस भी देते जा रहे हैं कि किस तरीके से you are attempting the question, कैसे आप जज कर सकते हो कि आपका आंसर क्या हो सकता है, and you can answer it correctly. Nice. Again 10 points. Question number 8. According to R.H. Whittaker, single-celled eukaryotes are included in which kingdom? R.H. Whittaker, Protista. Protista. Again 10 points. What is the role of the Golgi apparatus in the cell? Glycolipid and glycoprotein synthesis. No. Question number 9 says what is the role of Golgi apparatus in the cell? In the cell. Yes. हाँ, glycolipid glycoprotein synthesis है by modifications. आपने आंसर मुझे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, modification लिखा हुआ है या glycoprotein formation लिखा हुआ है. Yes, it's written modifications and packaging of materials. Okay, हाँ NCERT की लाइन तो यही है. अब इसमें आप देख लीजिए कि -5 करना है या +10, दोनों ही ठीक है. I am leaving it to all my biology enthusiasts itself कि सर ने जो आंसर दिया है is it correct, एंड इसी के साथ सर एक चीज बताइए, आपने जैसे भी एनसीईआरटी को पॉइंट हाईलाइट किया है, आई नो दैट आपको ना एनसीईआरटी बहुत अच्छे से याद है, यू नो इट बाय हार्ट
किस पेज पे कौन सी लाइन कौन सा वर्ड लिखा है, एवरीथिंग। तो अभी इतने सारे क्वेश्चंस मैंने सब्जेक्टिव पूछे, सारे आंसर्स आपको आते गए एंड यू वर गेटिंग 10 पॉइंट्स। तो अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछती हूँ जो आप मुझे बताइए कि साइज ऑफ PPLO इज गिवन एट विच पेज नंबर ऑफ 11th NCERT? 128. Oh my God! See, guys, you're seeing that sir ने exact सही चीज बोली है। मतलब how can you learn sir? इतना एकदम डीपली कैसे याद होता है? मुझे पढ़ाते हुए बहुत साल हो गए हैं और बेसिकली मैं क्या मेरे टीचिंग स्टाइल में हमेशा एनसीईआरटी को इंक्लूडेड रखता हूँ। Yes. तो शुरू के दिनों में ऐसा था कि भाई जब एनसीईआरटी, ऐसा नहीं है कि एक दिन में एनसीईआरटी याद हो गई है, सालों की मेहनत है मेरी। मैं शुरू के दिनों में पॉकेट डायरी रखता था अपने पास। होता ये था कि भाई जैसे मैं क्लासरूम में पढ़ा के आया और पढ़ाने के बाद क्या है, बच्चे कोई लाइन में भूल गया बोलना और बच्चा उसे घर पे जाके रिवाइज करता, तो अगले दिन मैंने नोटिस किया कि अगर 100 बच्चों की क्लास है तो 50% से ज्यादा क्लास बच्चा वही लाइन आके बार बार पूछ रहा है जो मैं भूल गया हूँ। अच्छा। और फिर मैंने उसको पॉकेट डायरी में मेंशन किया कि नेक्स्ट लेक्चर में जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसको मैं भूलूंगा नहीं। तो एनसीईआरटी याद करवाने में सबसे बड़ा रोल जो है वो स्टूडेंट्स का ही है। तो मैंने फॉलो एनसीईआरटी करी सिलेबस के साथ, लेकिन उसको याद करवाने का जो पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है वो बच्चों को जाता है, मैं अकेला शायद ये नहीं कर पाता। So he's saying that students have played this role and at the same time sir students को भी NCERT ही ऐसी तरीके से याद होनी चाहिए for their exam। याद होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसा मैं याद रखता हूँ एनसीईआरटी एज इट इज लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड, वो नहीं करना। आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एक्चुअल बात ये है कि नीट के एग्जाम में एनसीईआरटी आपको पढ़नी है 1 साल के लिए। नीट का एग्जाम देने के लिए आप तो मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि अगले साल मुझे तो बच्चे को वही पढ़ाना है। तो मेरे जैसा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एनसीईआरटी को फॉलो करना जरूरी है। NCERT follow करना जरूरी है। Okay. Next question says, what is the, okay, this question is done. Name the process by which mRNA is synthesized from DNA. mRNA, yes. Transcription. Again 10 points. Next question. The name of amino acid which plays a central role in nitrogen metabolism. Central role. Amino acid. मैं अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बोलने वाला था, लेकिन ग्लूटामिक एसिड आएगा आंसर। पहले सर ने गलत आंसर बोला है, लेकिन सो गाइस यहाँ पे पहले तो 10 पॉइंट्स मुझे ऐसा लगता है इस आंसर को दे देने चाहिए, लेकिन जो पहले आंसर दिया सर ने उसके अकॉर्डिंग -5 होना चाहिए, क्योंकि अमाइनो एसिड बोला है ना, तो अमाइनो एसिड में ग्लूटामिक एसिड आएगा बच्चों। एग्जैक्टली। एंड सर ऐसा होता है ना, मतलब अगर एक टिक कर दिया तो फिर वो तो नंबर वो बस मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई गलती नहीं करनी। एग्जैक्टली। सो अगेन अ चेक पॉइंट फॉर ऑल द व्यूअर्स दैट आपने एक बार जो टिक कर दिया वो आप रिपीट उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अभी सर बोल पाते थे, सर बोल सकते थे, इसलिए उन्होंने फटाफट से चेंज कर दिया, बट आपको वहां लिखना है एग्जाम, राइट? सो एनीथिंग एल्स, एनी पॉइंट व्हिच यू वांट टू। हाँ, बस वही है कि भाई आप लोग क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन जिसमें भी आपको प्रॉब्लम लगती है ना, ओएमआर शीट भरनी होती है बच्चे ने नीट के एग्जाम में, तो बच्चे को क्या करना होता है कि भाई क्वेश्चन पेपर करते टाइम उसको किसी भी क्वेश्चन को लेकर जिसपे वो श्योर नहीं है उसका आंसर फिल नहीं करना। ट्रू। तो उसको क्या करना है, जल्दी जल्दी पूरा पेपर पढ़ने की कोशिश करनी है, पेपर पढ़ता जाए, जिसपे वो श्योर है उसके आंसर टिक करते जाए, जिन पे श्योर नहीं है उनको मार्क करता जाए। और जैसे 3 घंटे का टाइम है तो 2.25 घंटे 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट करिए आप। उसके बाद लास्ट का आधा घंटा उन्हीं क्वेश्चंस को दीजिए जिनको आपने मार्कअप कर रखा है, जिन पे आप कंफ्यूज थे, तो उससे क्या होगा, आपका एक्यूरेसी लेवल थोड़ा बढ़ेगा। ओके गाइस, सो सर ने जैसे बताया उसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं, सर इज सेइंग दैट आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार आपने ओएमआर में मार्क कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, तो सर ने जो भी गलती करी वो आपको नहीं करनी है। एंड सर इसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं, मार्क्स? नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसा है कि भाई नीट के एग्जाम में पहले 180 आते थे और 3 घंटे का टाइम मिलता था। अभी क्वेश्चन जो है वो 200 है। अच्छा। हालांकि बच्चे को अटेम्प्ट 180 करने हैं। ओके। 200 उसके लिए ऑप्शन है कि भाई 20 क्वेश्चन आपको ऐसे दिए गए हैं कि अगर आपको नहीं भी आते तो आप उनको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन 180 आपको अटेम्प्ट करने हैं 200 में से। अच्छा, ओके, सो इट्स अ गुड थिंग फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स रिस्पोंड टू लाइट फॉर फूड फॉर्मेशन। फोटोसिंथेसिस। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान ही तो मेरे को भी पता था, बिकॉज हमने ये बचपन से साइंस में पढ़ा है। सो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन जो जल्दी से सर ने बता दिया है एंड को 10 पॉइंट्स मिल गए। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड इज? एनिमल वर्ड कोलेजन होना चाहिए। कोलेजन इज करेक्ट, क्योंकि अगर पूरे एटमॉस्फेयर का पूछेंगे तो रुबिस को बताऊंगा मैं, लेकिन आपने एनिमल वर्ड बोला है तो कोलेजन आएगा आंसर। ओके गाइस, एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। नेक्स्ट, which structure is considered as a semi-autonomous organelle in animal cells? Mitochondria in animal cell. Yes. Mitochondria. Guys, आप देख पा रहे हैं कि सर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। He is seeing the word keyword। अच्छा ऐसा है तो इसका आंसर ये होगा।
सो रिमेंबर, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पेपर वेल एंड अच्छे से उसको अटेम्प्ट करो, राइट सर? एक्चुअल क्या है कि प्लांट सेल लिखा होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स दोनों बोलता मैं, क्लोरोप्लास्ट का नाम भी लेता, लेकिन एनिमल सेल मेंशन्ड है तो मेरे को माइटोकॉन्ड्रिया बोलना था सिर्फ। ओके, सो गाइस आपकी थ्योरी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको ऐसे कीवर्ड्स के थ्रू आपको आंसर पता लग जाए, राइट सर? जी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, Markantia is an example of which division of Plantae kingdom? प्लांटे किंगडम में मार्केंशिया ब्रायोफाइट्स में आते हैं। Bryophyta, exactly the correct answer. Again 10 points sir, मेरे को अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला है जिसमें मैं -5 कर सकूं। हाँ वो मैंने करा बट उसके बाद सर ने वापस सही आंसर घुमा दिया मैंने, हाँ। Exactly. Next question. What is the name of the class of enzymes that digest proteins? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली क्लास हाइड्रोलाइजेज। Hydrolysis, again 10 points. The term linkage was coined by? लिंकेज कॉइन्ड बाय मॉर्गन। पूरा नाम? पूरा नाम तो बच्चों मुझे नहीं पता है, लेकिन शॉर्ट में बता सकता हूँ, टीएच मॉर्गन नाम है। टीएच मॉर्गन। अब सर आपको यहाँ पे 5 पॉइंट्स मिल जाए तो आपको पूरा बिल्कुल नहीं, नाम देखो मॉर्गन और भी साइंटिस्ट के हो सकते हैं, लेकिन जेनेटिक्स में मॉर्गन का नाम जो है वो मॉडर्न जेनेटिक्स में बहुत अच्छा नाम है, तो मुझे मॉर्गन याद है क्योंकि पढ़ाते टाइम बार बार मॉर्गन ही आता है। Yes. तो शॉर्ट फॉर्म में मुझे उनका टीएच मॉर्गन याद है, लेकिन फुल फॉर्म मुझे सच में नहीं पता है। So guys, टीएच मॉर्गन सर आंसर दे रहे हैं तो मैं सर को मार्क्स भी हाफ ही दे देती हूँ। हाफ ही दे देती हूँ, सही है। टीएच का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जरूर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when both parental alleles are expressed together in progeny, it is called as? एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। Okay. When both parental alleles are expressed together in progeny, it is called as? पेरेंटल एलील्स बोथ एक्सप्रेस हो रहे हैं, कोडोमिनेंस। Okay, it's the correct answer. Last question है वैसे मेरा ये, और I am hoping ये सर को ना आए so that I can deduct his marks. Next, last question. Pyramid of number in a cropland ecosystem is? नंबर इन क्रॉपलैंड अपराइट होगा। I again failed and he has given the correct answer and he is getting 10 points again. So this is how I have asked him so many questions and I hope आपको भी इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पता होंगे। नहीं पता होंगे तो आपकी थ्योरी रिवाइज हो गई होगी एंड हमने साथ के साथ सर से ये भी सीखा कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या क्या चीजें होती हैं, एंड आई होप आपको सारी एक इनसाइट्स मिल चुकी होंगी। एनीथिंग यू वांट टू से सर? बस अभी तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि दीपावली वेकेशंस बच्चों के अभी जस्ट खत्म हुए हैं और आने वाले जो नेक्स्ट मंथ्स हैं इनमें कोई बड़ी आपके पास कोई हॉलीडेज नहीं आएंगे। मैक्सिमम संडे आएगा, ले दे के बीच में वो एक दिन छुट्टी वीक में आए तो आए बस। तो ये टाइम जो है वो प्रॉपरली ये समझ लीजिए कि एजुकेशन के लिए। और नॉर्थ इंडिया के अंदर तो ऐसा है कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सारे दीपावली के बाद के जो मंथ्स होते हैं, जनवरी फरवरी के बाद शुरू हो जाते हैं। जैसे बोर्ड्स के एग्जाम भी और उसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं वो भी सारे इन्हीं महीनों के अंदर कंप्लीट होते हैं। तो मतलब ये टाइम जो होता है इसमें छुट्टियां कम है और पढ़ाई का टाइम ज्यादा है, तो पढ़ना चाहिए, प्रॉपर अभी टाइम दे दीजिए। अगर अभी तक कोई कमी रह गई है आपके पढ़ने के तरीके में या कहीं पर भी आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आई है आपको आज तक, तो उसको आप अब रिजॉल्व कर सकते हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, टाइम अभी भी निकला नहीं है। आप आज भी अगर ईमानदारी से लगेंगे तो बहुत अच्छे नंबरों से आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे। नाइस, so amazing tip by Jagdeep sir we have got here. So guys, आप अभी भी आपके पास टाइम है, अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, जैसा सर बोल रहे हैं वैसे पढ़िए। मैं तो सर के नंबर नहीं काट पाई और इसी तरीके से आपको अपने मार्क्स भी नहीं कटवाने हैं इन द नीट एग्जाम। इसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन भी इतनी सॉलिड होनी चाहिए दैट यू नो ईच एंड एवरी आंसर बाय हार्ट, राइट? सो दिस इज हाउ वी कम टू एन एंड एंड आई एम होपिंग दैट ये वीडियो, मुझे तो काफी इन्फॉर्मेशन लगा और मुझे काफी मजा भी आया एंड आई एम होपिंग दैट वो ही सेम हमारे व्यूअर्स को भी लगा होगा। जी बिल्कुल। Okay, so coming on to the marks, as you all know that मैंने 20 questions सर से पूछे थे, each having 10 marks. So this is how we are coming to the 200 marks. Total score is 200 marks. लेकिन एक क्वेश्चन था जो सर ने गलत अटेम्प्ट किया था, तो अगर एक आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो दैट इज 190 मार्क्स। लेकिन सर ने आंसर गलत भी दिया था क्योंकि मैं पहले वाला आंसर उनका कंसिडर कर रही हूँ, सो आई एम गिविंग -5 टू हिम। सो दिस इज हाउ वी आर कमिंग टू द टोटल ऑफ 185 मार्क्स आउट ऑफ 200। आउट ऑफ 200, 185 आउट ऑफ 200। लेकिन वो आंसर गलत नहीं था, वो मैंने एसिड अमाइनो एसिड देखने के चक्कर में मैंने सोच लिया, फिर मैंने ध्यान दिया कि ग्लूटामिक एसिड बोलना चाहिए, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड नहीं। लेकिन फर्स्ट वर्ड कंसीडर किया है इन्होंने, तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ मैं एक बात और बच्चों को इसी मेरे मार्क्स से मैं एक क्लियर कर सकता हूँ कि आप एग्जाम में जब क्वेश्चन करते हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम खास करके ये होता है
फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी में इतना नहीं होता, जहाँ कैलकुलेटिव पोर्शन होता है नीट के बच्चे के लिए, वहां ये प्रॉब्लम आती है उसको। वो क्या करता है, कई बार क्वेश्चन को ना अपना प्रेस्टीज इशू बना लेता है कि यार इस टाइप का क्वेश्चन कल ही तो मैंने सॉल्व किया था। और वो पहली बार मेथड लगाता है, उसका आंसर सही नहीं आता, फिर दूसरी बार लगाता है, फिर आंसर सही नहीं आता, फिर तीसरी बार, लास्ट में क्या होता है कि वो इरिटेट हो जाता है क्वेश्चन से, फिर उसको लगता है कि छोड़ो जो आ रहा है उसी को लगाते हैं, तो 4 ऑप्शन में से एक वो आंसर लगा देता है और अटेम्प्ट कर लेता है। क्यों? गुस्से में, इरिटेट हो गए, क्योंकि उस क्वेश्चन पे उसने टाइम लगा दिया और फ्यूचर में उसको पता चलता है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। अब आप सोचिए कि जिस क्वेश्चन पर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपके ना माइनस हो रहे हैं ना प्लस हो रहे हैं, आप जितना स्कोर आपका आना वही रहना है। लेकिन अगर आपने इरिटेट होकर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है और भगवान ना करे कि वो क्वेश्चन आपका नेगेटिव हो गया है, तो इसका मतलब है कि आपका जो एक्चुअल स्कोर है वहां से आप 5 मार्क्स पीछे चले जाएंगे। क्योंकि अगर आप सही करते तो +4 होके, जैसे मान लीजिए +4 करके आपने 600 मार्क्स लिए हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका वहां से गलत हो रहा है तो आप -5 के हिसाब से 595 पर आ जाएंगे। तो 5 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जिस क्वेश्चन पर आप कॉन्फिडेंट होते हैं वही आप टिक करिए। यही गलती मुझसे भी हुई है। एग्जैक्टली। तो मेरे 10 मार्क्स कटने थे, 15 कट रहे हैं 200 में से। सो अगेन अ वेरी डीप पॉइंट जो सारे नीट एस्पिरेंट्स को पेपर अटेम्प्ट करते वक्त ध्यान में रखना है। सो सर काफ़ी इन्फॉर्मेशनल था ये वीडियो, काफ़ी एंगेजिंग। आई एम होपिंग फॉर दी व्यूअर्स एज वेल। ओके गाइस, दिस इज हाउ वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर रैपिड फायर राउंड एंड सर ने मेरे सारे रूल्स माने, सो आई एम नाउ गिविंग बैक टू हिम his phone. Thank you so much Thank you sir. so much, आपने कोई चीटिंग नहीं की है एंड इसके लिए मैंने आपको फोन आपका वापस दे दिया। जी जी। So till then we'll be meeting in another video very soon. You can like and share this particular video and subscribe to the channel Unacademy Kota Diaries for more such content. So let's crack it.